Good morning, students. I welcome you all today to this class on the paper of Understanding of Discipline. Myself, Dr. Roli Rai. I'll be taking this class on curriculum and basis of curriculum and proceed further from the last class which we attended on the various principles. We were discussing about curriculum, and as you all know that the etymological meaning of curriculum means that in Latin it means currere, which is a race course, and according to this the narrow meaning being the syllabus or the course of study, but basically the wider meaning of curriculum means that all those experiences which a child is receiving in the process in the during the classroom, inside and outside as well. Now, we had done that this how education is taking place, the basis of curriculum, and the various aspects such as the philosophical, sociological, political, and psychological. We had discussed the philosophical basis on the basis of idealism, naturalism, realism, and pragmatism as well as humanism. हमने जो उसका दार्शनिक पक्ष था जिसके आधारशिला मानते हुए पाठ्यचर्या को हमने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, अस्तित्ववाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद के पर्टेनिंग हमने उसको डिस्कशन किया था, जिसमें आइडियलिज्म के फिलॉसफी में वी डिस्कस्ड हाउ the curriculum is based and what is the importance and how mind and the soul and the spirit is important. Then we had also discussed about the various subjects that should be taught, as well as in naturalism, यानी कि प्रकृतिवाद में जिन विषयों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, ज्यादा महत्ता दी गई, जिसमें मैनुअल वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, नेचर के साथ रहकर नो रिजिड करिकुलम रखते हुए हमने बात करी थी रिगार्डिंग दिस वेरियस एस्पेक्ट्स. Now, what is important is the fact, ये हम किन चीजों को लेके डिस्कस करते हैं, जिसमें रियलिज्म की बात करते हैं, जो अस्तित्ववाद है, जो रहने जो वास्तविक चीजों से संबंधित है, जिसमें करिकुलम की बात करते हैं कि अरिस्टोटल ने क्या कहा है, बटलर ने कहा है, एंड दीज आर द वेरियस फिलोसफीज रिगार्डिंग द फैक्ट कि करिकुलम कैसा होना चाहिए. प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद में कहा गया कि जो एक्सपेरिमेंटलिज्म है, जो एक्सपेरिमेंट है वो किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, जो लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिसमें कि यूटिलिटी क्या है, किस तरीके से कंडक्ट करते रहना चाहिए, लैब की तरीके से उन्होंने लिया, उसमें विषयों का जो चयन किया गया जो आज के युग में जो जिसकी उपयोगिता है उनकी बात उन्होंने करी है. Then we talked about the principles regarding which have been prescribed for pragmatism, जो कि principle of utility, principle of interest, principle of experience, principle of integration we have discussed, जिसमें इन चीजों को लेकर हम साथ में चले थे कि हमको जब तक उसमें उपयोगिता नहीं है तो उस प्रयोजनवाद उन चीजों को नहीं मानता और उनका करिकुलम अकॉर्डिंगली डील करता है. Then we had talked about the humanism aspect, humanity की बेस पे मानववाद के उसमें. We come to the socio-cultural basis of curriculum. The society's knowledge and culture plays a very important and crucial role in determining what students know, what they bring to that society, and when they leave school, and how committed they feel towards it. तो ये जो socio-cultural basis बताया गया, इसमें importance बताई गई है. And the various areas of social forces, जो कि social goals हो गए, conception है कि किस प्रकार के social goals होने चाहिए. Now, the importance being in such a manner कि हम इसके different पक्ष को हम आज study करेंगे कि sociological aspect इनके क्या होते हैं. तो जो social forces हैं जिसमें increase करता है जो ethnic cultural diversity है, जो environment है, हाउ ये जो आपका वातावरण है उसमें बदलाव लाने की बात. तो जो हमारा करिकुलम है, बच्चों को हम जो विद्यालयों में सीख देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के कारण मूल्यों में बदलाव आते हैं, उन्हीं के अनुसार मोरालिटी या जो कि मॉरल्स और एथनिक वैल्यूज, एथनिसिटी की बात की जाती है, नैतिकता की बात की जाती है, इनमें बदलाव आते हैं, परिवर्तन होते हैं, परिवार का क्या रोल होता है. So this is a very important aspect, and many times that is why we talk about curriculum and not syllabus. तो जो curriculum की हम बात कर रहे हैं, it is basically relating to the various aspects of relation to the aspects of daily life.
हमारी रोज की आम जिंदगी में, दिनचर्या में हम बच्चों को जो सिखाते हैं, जिन चीजों के बारे में उनको पता चलता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो क्या होता है? वो परिवार से मिलता है। तो नेचुरली जो करिकुलम है, हमारे परिवार की जो रूटीन है, जैसे अगर हम बड़ों को इज्जत देते हैं, बड़ों को हम किस, आप देखते हैं कि आपके घर के परिवार में कई कई परिवारों में आज भी बड़ों को विश करने का, पैर छूने का रिवाज, हम ये नहीं कहते कि ये एक आदर्श है। There is no such thing which is designed as black and white perspective में कि ये सही है, ये अच्छा है और ये बुरा है। लेकिन जो हम संस्कार, जो हम मूल्य देना चाहते हैं, वो परिवार के माध्यम से हम देते हैं, एंड दैट इज हाउ सोसाइटी टेक्स इट इनटू अकाउंट। और समाज में हम इन चीजों को जब लेते हैं, those various aspects relating to the technological revolution that has brought about, टेक्नोलॉजी ने बहुत 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 चेंजेस लाए हैं। आप देखते हैं the culture of instead of reading books, the students going for knowledge, you can say net that is providing you with so much of information. आजकल मोबाइल, आजकल encyclopedias, the wikipedias, they're all sources of income, sources of learning. ये जो लर्निंग है, ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये केवल किताबों से, केवल टीचर से ना आकर सबसे बड़ी टीचर हमारा नेट हो गया है, हमारी इंटरनेट की फैसिलिटी हो गई है। हमें जितनी जानकारी गूगल से मिलती है, उतनी जानकारी हमें किताबों में एक किताब ढूंढने पर नहीं मिलेगी, जो कि एक क्लिक करने पर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो दिस इज व्हाट इट रिलेट्स टू द वेरियस एस्पेक्ट्स कि हम उन चीजों को कैसे पाते हैं। ना ये जो आपका एजुकेशन की बात करते हैं कि कल्चर में किस प्रकार से वो चेंजेस आते हैं, सो वी फाइंड दैट दीज चेंजेस अकर इन द फॉर्म ऑफ चेंजिंग वर्किंग कंडीशंस। ये समाज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी वर्किंग कंडीशंस हैं, इक्वल राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं, ये बहुत बहुत मायने रखते हैं। सो दोज राइट्स आर ब्रॉट अबाउट बाय पीपल बिकमिंग अवेयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, जिनको जानकारी नहीं होगी, जिनको परिवर्तन न होंगे, पता नहीं चलेगा कि वो राइट्स क्या हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, इतना वायलेंस, इतना करप्शन, इतना यू फाइंड मोलेस्टेशन, रेप्स एंड फिजिकल असॉल्ट्स एंड लूट दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड। और इसके लिए ये जो कहना चाहिए इक्वालिटी ना होना बहुत बड़ा मुद्दा है। देयर आर मेनी फैक्टर्स फॉर दैट, और हमारे समाज में ये जो फैक्टर्स हैं, वे आर रिलेटिंग टू, आप देखते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, उतने जॉब्स नहीं है। So all those reasons are the major reasons why so many social changes are taking place. So many, the curriculum is naturally has to be changed according to the need. जब तक हम वोकेशन बेस्ड अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं करेंगे, ये क्राइम, ये वायलेंस, ये करप्शन, ये असॉल्ट्स, दे विल नॉट स्टॉप। ये बढ़ते ही जाएंगे, निरंतर बढ़ेंगे, और हमें इनको रोकना बहुत आवश्यक है। तो जो लैक ऑफ पर्पस है, मीनिंग है इन लाइफ, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ये लैक ऑफ पर्पस की जो हम बात करते हैं, ये एक, जब तक मकसद हमें जीवन में नहीं मिलता, एक ध्येय, एक उद्देश्य नहीं मिलता, तो वो जो करिकुलम है वो इफेक्टिव नहीं रह जाता। सो एवरी पार्ट ऑफ करिकुलम हैज टू बी प्लेस्ड इन सच अ मैनर कि वो करिकुलम इफेक्टिव हो, ज्यादा पर्पसफुल हो और मीनिंगफुल हो। और ये जो ग्लोबल इंडिपेंडेंस की हम बात करते हैं, ये तभी संभव है जब हम सब आत्मनिर्भर बनेंगे। Now, these are not the words कि मैं कोई political scenario की बात कर रही हूँ। This is simply the fact कि globally all nations, all people, चाहे वो individual level हो, चाहे वो social level हो, community का level हो, society का हो, या हमारे देश का level हो, we all have to become independent. और ये जब नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिपेंडेंस बढ़ती है, तभी हमारे लिए संभव हो पाता है कि हम इन एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए कहें कि हमारा करिकुलम बेहतर है, या बेहतर तरीके से हम उसमें इफेक्टिव बना पा रहे हैं। Now, these are the various aspects when we talk about those forces. Now, we come to those political bases and political scenarios also. The cultural basis of curriculum. कल्चरल बेसिस से क्या मतलब है? करिकुलम का जो कल्चर है, वो कल्चर से कैसे रिलेटेड है, क्या संबंध है? सो कल्चर इज द टोटलिटी ऑफ वंस कस्टम्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, टेक्निक्स
and practices that characterizes social living. Every society tries to preserve and transmit its culture, and education is a potential tool, you can say is a potent tool in this regards. So we will discuss about these, that how this curriculum development is leading us to the various aspects. Now, I would like to discuss with you the psychological basis, because this is again relating us to the social and the political scenario as well. Now, the psychological basis of curriculum says that the behaviorist theories are dealing with various aspects of stimulus response and reinforcement schemes, and the behaviorists advocate that behavior is likely to be influenced by the conditions under which learning takes place. Attitudes and abilities of learning can change or improve over time. क्या होता है कि ये जो behavioral pattern है, psychology is a science of behavior. Psychology is related to the responses that we have, and these are interrelated to every human being. और हम जब तक किसी की साइकोलॉजी बच्चों को पढ़ाने के पहले अगर बच्चों की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, उनसे एक अच्छी रैपो नहीं स्थापित करेंगे, एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, उनका ट्रस्ट नहीं लेंगे, उनको समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हम उनको आगे कुछ पढ़ा नहीं सकते या उन पर इम्पैक्ट नहीं छोड़ सकते. So what is very important is the fact that we deal with the right kind of psychological behavior. I'm sure you must be studying in your psychology, the paper of psychology also. What are those individual differences which make one person different to the other person, and how does it impact the learning teaching process? ये जो behaviorist theory है वो डील करती है various aspects से, जिसमें stimulus response और reinforcement scheme की बात की जाती है. Now, behaviorists advocate that behavior is likely to be influenced by the conditions under which learning takes place. Attitudes to the abilities and the learning process, and these continue as a total process. जो क्राइटेरिया बताया गया है कि साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन emphasizes that the child is the center of educational process. We all know that the teacher is not the center, the teacher is not the pivot, nor is the curriculum, but the child is the center of all activity. So the education is for the child, and child is not for education, as we all know. Psychology has established the fact that the child develops, you can say, through various aspects, through various levels as well as various stages. And there are individual differences, as I said, in all this process. And this can be intercepted in various relationships. और ये रिलेशनशिप हम कैसे समझते हैं या किस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि जो बच्चों के इम्पल्स होते हैं, जो अर्जेस होते हैं, जो नीड्स एंड एबिलिटीज होती हैं, जो कैपेबिलिटीज होती हैं, जो कैपेसिटीज होती हैं बच्चों की, वो भिन्न होती हैं. Therefore, the curriculum should be so flexible, so you can say reaching out, that it should be along with the natural process and progress in its own speed according to its natural directions, which needs for development. And for this process, the curriculum should contain various games, sports, creative activities, and useful developing experiences. अगर बच्चों की नीड्स को ध्यान में नहीं रखा गया और बिना उनकी नीड्स को ध्यान में रखे आपने करिकुलम बना दिया, क्योंकि आप रिजिड रखते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं रखते हैं, तो यू विल फाइंड मेनी चेंजेस दैट विल अकर, बट यू विल फाइंड द लर्निंग विल नॉट बी सो इफेक्टिव. और टीचिंग की इफेक्टिवनेस तभी निकल कर आती है, तभी रिजल्ट फ्रूटफुल होता है, जब उसमें लर्निंग, एक्सेप्टेंस टू लर्निंग, एक्सेप्टेंस टू टीचिंग होती है. सो व्हाट हैपेंस, अगर आप क्लासरूम की बात लीजिए, तो क्लास में जब बच्चे बैठे होते हैं और उन बच्चों के साथ में आप एक्टिविटीज में कुछ और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बच्चों का करें इंस्टेड ऑफ जस्ट लेक्चर बेसिस, यू विल फाइंड द स्टूडेंट्स आर मच मोर इंटरेस्टेड, दे लर्न मच मोर. और इसीलिए हमारे बीएड के प्रोग्राम में जो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें ये कहा जाता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज you have to deal with the teaching aids, audio visual aids, learning as acceptability. आप जैसे geography पढ़ा रहे हैं, तो you have to deal with you have to have a map along with it, जिसमें आप चीजें सीख रखें, आप timeline रखिए हिस्ट्री में, आप different
लैब्स में ही जरूरी नहीं है कि साइंस के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए जाएं या डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट किए जाएं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, बल्कि ये छोटी छोटी चीजें जैसे कि जो होती है वो क्लास में भी कराई जा सकती हैं। आप बायो का कोई क्लास ले रहे हैं, आप टैप रूट और आप फाइब्रस रूट पढ़ा रहे हैं, तो यू ब्रिंग दोस डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट्स सैंपल्स फॉर द स्टूडेंट टू सी and you show it to them as samples. So ये जो है उसमें बच्चों की साइकोलॉजी आपको समझ में आएगी, बच्चे किस तरह की चीजें करना चाहते हैं, आप उनको गेम्स के माध्यम से कई सारी चीजों की लर्निंग करा सकते हैं. So those learning activities should be done in such a manner that it reaches out to the child. So the psychological aspect is such जहाँ पे उनके behavior को आप change कर सकते हैं, modify कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे differences ला सकते हैं, उसको ज्यादा influence कर सकते हैं. So those games, those activities which we are talking about relate to their various activities. आप for example अगर आप बच्चे ने homework नहीं किया, एक दिन नहीं किया, कई दिन नहीं किया, और उनको आप चाहते हैं उनमें उनके behavioral pattern में change लाना, या उनको आप समझना चाहते हैं कि बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है, तो you will try to understand what the problem is with the child. Maybe उसके घर में कुछ problems चल रही हैं, maybe parents में चल रही है, maybe उसके maybe दादी बाबा और मम्मी पापा के बीच में चल रही है, maybe भाई बहन में चल रही है, maybe financial problem चल रही है, या maybe घर में इस तरह की condition है कि इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और आप कह रहे हैं होमवर्क नहीं करके आओ, तो उसके पास में कोई इन्वर्टर या जनरेटर फैसिलिटी नहीं है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द साइकोलॉजी, व्हाई अगर बच्चा रिटेलिएट कर रहा है. So these are the basis of curriculum that you frame. For example, you have so many periods on extracurricular activities and co-curricular activities. Like maybe you have the facility of art period, you have moral science classes, you have sports classes, music classes and dance classes. और आपने जब बच्चे ने कोई चीज ऐसी करी जिससे कि बिहेवियर में उसके बहुत आपको नजर आया जो कि गलत किया है, तो उसका पनिशमेंट कोई कैपिटल पनिशमेंट नहीं है. The best form of punishment is to understand the psychology of the child and understand what is his best, what is close to his heart. बच्चे को क्या अच्छा लगता है. अगर उसको म्यूजिक और डांस बहुत अच्छा लगता है, then make sure that the child foregoes that particular period. चाहे उसका म्यूजिक डांस हो सकता है या वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो सकती है. आप उसको कह देंगे कि एक हफ्ते तक तुम यू विल नॉट बी अलाउड टू प्ले स्पोर्ट्स, व्हाटएवर इज क्लोज टू द हार्ट. या आप कह सकते हैं अगर उसको मैथ्स बहुत पसंद है, ठीक है, यू विल नॉट बी अटेंडिंग योर मैथ्स, यू विल बी सिटिंग इन द क्लास बट यू विल बी नॉट अलाउड टू आंसर इन द क्लास. बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चे को ये समझाने के लिए कि वो कहाँ गलत जा रहा है, बच्चे की साइकोलॉजी को समझना अत्यधिक इम्पोर्टेंट है या आवश्यक है. So these are some important basis when we say कि साइकोलॉजी को बच्चे की कैसे समझा जा सकता है जिससे उसका करिकुलम में और एनरिचिंग या बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से उसकी लर्निंग हो सके. So these are the certain important aspects that we deal with. Then the psychological basis will be on the cognitive theory. So cognitive psychology focuses their attention on the present individual process and how to monitor and manage thinking. और ये जो लर्निंग कॉन्स्टिट्यूट करती है लॉजिकल मेथड्स को ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट करने के लिए, ये लर्निंग को ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग या इंट्यूटिव थिंकिंग से रिलेट करती है. एंड मोस्ट साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन कॉग्निटिव, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल टर्म्स. और ये जो कॉग्निटिव थ्योरीज हैं जिसमें साइकोलॉजी फोकस करती है बच्चों के इंडिविजुअल सेल्फ पे, बच्चों की इंफॉर्मेशन पे, प्रोसेस नॉलेज पे, हाउ दे कैन मॉनिटर, हाउ दे कैन मैनेज थिंकिंग. लर्निंग constitutes a logical method for organizing and interpreting this and to reflect. See, psychology means कि आप बच्चे को assess कर पाएं कि उसकी thought process क्या है, उसको क्या अच्छा लगता है, किस चीज से वो डर जाता है, क्यों डर जाता है, क्या वो पढ़ना चाहता है, क्या वो क्यों नहीं पढ़ना चाहता है. How you can reach out to the child in the best possible way. और ये जो मॉनिटरिंग है, ये जो मैनेजिंग है, ये स्किल जो लर्निंग एबिलिटी की बात हम करते हैं, that is relating to various aspects. और हम इसमें ये चीज कहते हैं कि इंट्यूटिव जो लर्निंग है, जो उनका कई बार हम आपसे कहते हैं, हम लोग बात करते हैं बच्चों से कि बच्चा कहता है कोई क्वेश्चन आपने पूछा एंड द चाइल्ड मे बी आंसरिंग करेक्टली एंड देन यू वंडर कि हमने तो ये पढ़ाया नहीं,
लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे की लर्निंग नहीं होती है। अगर आपने नहीं पढ़ाया है तब भी उसकी लर्निंग होती है। नॉर्मल लॉजिकल क्रिएटिव माइंड को सोचने में, को समझने में समर्थ होता है। तो जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को कभी भी क्वेश्चन करने से, क्यूरियोसिटी रखने से मना नहीं करना चाहिए। They should never be told, never be you can curved from thinking, from asking questions, from expecting different things. Now, this is all relating to various aspects, and the creative thinking and the intuitive thinking is exceptionally important. Most psychologists explain the phenomena of human growth and development in cognitive, social, psychological, and physical terms. तो जो बिलीव्स हैं, जो नॉलेज शब्द से हम लोग लेकर निकलते हैं, वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी इन टर्म्स ऑफ various kinds of behavioral pattern, understanding their concepts, knowing their knowledge ability and their cognitive theories. Now coming back to the cultural basis of curriculum, this culture is totality of one's customs, norms, values, beliefs, टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस। जितना हमारा जो कल्चर है, ये अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो इट इज अ वेरी रिच कल्चर. इट इज बेस्ड ऑन एक्सेप्शनली रिच कल्चर. इट इज द टोटालिटी ऑफ वंस कस्टम्स, नॉर्म्स, और यहाँ पे जो चली आ रही मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो हमारे विश्वास है, हमारे मूल्य हैं, और जिन तकनीक से हम जिनको प्रैक्टिस करते हैं और अपने जीवन को, दिनचर्या को जीते हैं, हमारे जीने की जो एक पहलू है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है. एंड एवरी सोसाइटी ट्राइज टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट दिस कल्चर. और देखिए, जो कुछ भी है वो पुराना जो है वो कोई सब ऑब्सोलीट हो गया, ऐसा नहीं है. या जो कुछ पुराना है वो सब कुछ अच्छा है, ऐसा भी नहीं है. Whatever is good, whatever is important, whatever needs to be protected, to be preserved, should always be preserved. और साथ साथ में पिछला, हमें पहले की चीजें हमें प्रिजर्व करनी है. आज को हमें आज के मान्यताओं में देखना है, आज के टर्मिनोलॉजी में देखना है, और भविष्य के लिए उसे प्रिजर्व या प्रोटेक्ट भी करना है. तो ये जो पोटेंशियल टूल है इस रिस्पेक्ट में, ये इन चीजों के बारे में बात करता है. तो जो करिकुलम डेवलपमेंट है, इट इज अ प्रोसेस एंड इट फ्लोज फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिस. और हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, दैट इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स. नाउ वी टॉक अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स की किस प्रकार से हम इनको कंसिडर करेंगे. दैट मीन्स इट इज रिलेटिंग टू द एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर. और कल्चर हमें ये सिखाता है कि हमारे जो पुराने लोग हैं उनमें मूल्यों से सबसे ज्यादा अधिक उसको जोड़ता है. और ये कल्चरल की जब हम बात करते हैं तो सोशियो कल्चरल बेसिस की बात करते हैं, जिसको सोसाइटी को हम कल्चर से जोड़ते हैं. तो कल्चर हमारे ट्रेडिशन से रिलेटेड है, हमारी मान्यताओं से, बिलीफ से, नॉलेज से, फेथ से, हमारे नॉर्म्स और हमारी रोज की जीने की दिनचर्या से. सो इट इज रिलेटिंग टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. तो जहां तक हम सोशियोलॉजिकल की बात करते हैं, इट इज यू कैन से रिलेटिंग टू द, according to sociological basis of education, the individual needs, the propensities, the interests and capacities of a person, and the tendencies should be molded through education. And to achieve social welfare and social development, only those subjects and activities should be included in the curriculum which are useful from the point of view of society. जो समाज के लिए हितकारी नहीं है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए. Or the curriculum which are useful from the point of view of society, the curriculum should also be constructed in accordance with the needs, requirement, considerations, conditions and aspirations of the individuals and the society, which so that the quality of sociability and citizenship are included and inculcated in each and every child. The curriculum should contain languages. ये इन्होंने विषयों की बात करी है कि किस प्रकार के विषय हमारे सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में इंक्लूड किए जाने चाहिए. सो लैंग्वेजेस, अरिथमेटिक, हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, social studies, general science, subjects to enable children to earn livelihood,
experimental arts, music, and such other socially useful subjects which develop the individual side by side with the society. That is what they have talked about कि उनको हम कैसे यूज करें, कैसे इम्पोर्टेंस लें और किस प्रकार से इस एजुकेशन को हम यूज कर सकते हैं. So these are the various aspects. और अगर हम साइंटिफिकली हम बात करें कि क्या साइंटिफिक इसमें इम्पोर्टेंस होती है, तो यू विल फाइंड कि साइंस के पर्टेनिंग साइंटिफिक टेंडेंसी को एजुकेशन को बहुत ही जोड़ा गया है और कहा गया है कि साइंटिफिक बेसिस ऑफ करिकुलम इज इम्पोर्टेंट. साइंटिफिक बेसिस से क्या मतलब है? सी, scientific basis are basically those bases which are relating to the aspects जहां पे आप साइंस को लेते हैं, और साइंटिफिक चीज वो होती है जिसमें एक्सपेरिमेंटल बेसिस लिया जाए या जिसको सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्किंग की जाए. नाउ these things are relating to the aspects where we talk about science, society, relating to culture, and it is relating to various aspects. Now जो साइंटिफिक चीजों की हम बात कर रहे हैं, it is relating to various aspects such as talking about the various aspects or basis of emphasis that the main and important places in the curriculum should be given to science subjects. For example, this curriculum is relating to you can say science which is not only in pertaining to so students, what happens when we talk about scientific kind of curriculum is the base that we take into the fact that science is organized, is systematic, and it requires a certain amount of more managerial skills. तो इसलिए इसमें कहा जाता है कि जैसे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स इनके होते हैं, क्यों ऐसा है कि आपके करिकुलम में क्लास 10 तक के बच्चों में सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल यू विल फाइंड मैथ्स एंड साइंस ऑल बीइंग स्टडीड बाय ऑल द स्टूडेंट्स. ये जो ऑप्शंस दिए जाते हैं ये आफ्टर क्लास 10th में भी दिए जाते हैं. कहीं कहीं पे जरूर ऐसा होता है कि क्लास 8 के बाद में भी सब्जेक्ट्स के ऑप्शन होते हैं, बट देयर आर सब्जेक्ट्स which are compulsorily taught, maybe maths, maybe science, maybe history, geography. तो इनका कहना रिगार्डिंग साइंस के लिए ये रहा है कि the fact that the Herbert Spencer divided human activities into 5 categories, and in order that the priority and the prescribed description subjects for each category should be fixed. That's it. Education should be so achieved that the complete development of an individual is able to be achieved. And the different subjects, there are different categories they have divided into, and the first category being the subjects where all the subjects are being transferred from the category of utilization to leisure time. जो यूटिलिटी के सब्जेक्ट्स हैं, जो लेजर टाइम के सब्जेक्ट्स हैं, सारे विषयों को इंक्लूड करने की बात करी है. जैसे कि स्पेंसर ने कहा है कि जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है फिजियोलॉजी, हाइजीन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड सेकंड कैटेगरी में मैथ्स, hygiene, maths, bio, sociology, physics, and the third category being physiology, domestic science, and psychology. Or fourth category में history, politics, economics, and fifth category being art, music, poetry, which should find proper place in the curriculum. तो ये जो इन्होंने साइंटिफिकली जो डिवाइड करते हुए विषयों की बात करी है, इनमें इन चीजों को इंक्लूड किया है. Now, different other aspects that they have included is the sociological aspects that we were discussing about, is the basis of just the different aspect की वो sociological में कौन से aspects या areas लिए गए हैं. That is relating to the principles that we were talking about. ये जो principles इनके तहत जोड़े गए हैं, they are relating to the isms where we are talking about. एंड अकॉर्डिंगली जो इसको जोड़ा है उन्होंने वो कहा है कि हर चीज, हर बात जितना आपके बच्चों को आप सिखाने की कोशिश करते हैं उसमें डिफरेंट एरियाज फॉर्म हो जाते हैं, और उसके तहत उन्होंने सोशल फोर्सेस को साथ में जोड़ा है. बट ऐसा नहीं है कि केवल इतनी ही चीजें हैं, ये ग्लोबल इंडिपेंडेंस तक आ गया तो सब चीजें खत्म हो गई, आगे इसके करिकुलम नहीं है. करिकुलम इज अ वेरी वास्ट काइंड ऑफ रिलेटिविटी, और इनको जोड़ते हुए डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात करी है, जो कल्चरल वैल्यूज की बात करी है, ये सभी में बदलाव आता जाता है और चेंजेस अकर करते हैं.
तो ये जो विलीज बताई हैं, वैल्यूज बताए हैं, रूटीन्स एंड कस्टम्स बताए हैं, या रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात करी है, ये वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं, और इनके मॉडिफिकेशन के अनुसार ही करिकुलम भी डेवलप करने में डिफरेंसेस आते हैं। तो जो पॉलिटिकल हम बेसिस की बात करें कि पॉलिटिकल बेसिस ऑफ करिकुलम क्या है, तो पॉलिटिकल बेसिस ऑफ करिकुलम में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आती है फंडिंग की। अगर फंड्स नहीं है विद्यालय में, स्कूल्स में, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, तो करिकुलम जो है वो डिपेंड करेगा किस पे? तो जो आप कह सकते हैं कि लोकल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, नेशनल लेवल हो, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, in any case you will find that politics always affects the system of education. So the curriculum development will naturally be dependent on that, and the goals will differ, the interpretation will be different, there will be the different material which is going to be developed for the purpose of interpreting, and उसको approve कराना examination center में, सारी चीजों पर वो funding पर depend करता है। तो ये कहना कि फंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिनेंस इंपॉर्टेंट नहीं है पॉलिटिकल सिनेरियो में, इसकी काफी इंपॉर्टेंस या अहमियत रहती है। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स। जितने करिकुलम है वो जो इन सब लेवल्स पे डिपेंड करते हैं। ये जो फंडिंग आपकी बताया, जो ये फंडिंग किस चीज की, ये हम लोग डिपेंड करते हैं लोकल लेवल पे भी, प्राइवेट लेवल पे भी, गवर्नमेंट पे भी। नो व्हाट हैपेंस, हमें फंडिंग किन चीजों के लिए चाहिए? फंडिंग चाहिए आपकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए, you need it for classrooms, you need it for libraries and for laboratories to be set up in schools, for playgrounds to be managed, for different requirement of the labs, डिफरेंट बुक स्ट्रक्चर, अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर है तो ये हर चीज के, चाहे वो पर्सनल बिल्डिंग हो, चाहे वो मेंटेनेंस फैसिलिटीज हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, you require funding. So the political standard for every aspect is necessary. Then we come to the fact on how to exercise and to control this. This can be exercised or controlled by large number of pressures which exist and which influence the curriculum development process, which may be defined as the exercise control by an individual or group of people who want to change the position of the educational system. तो ये जो कंट्रोल है किसके हाथ में है, वो मैनेजरियल कौन है, वो अथॉरिटी कौन है जिसके पास में पावर है, और नेचुरली जो एक्सरसाइज किया जाएगा वो करिकुलम भी डिफर करेगा, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो नीड टू इम्प्रूव प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, जैसे कि हर विद्यालय की हर चीज की डिफरेंट नीड्स होती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपकी हम बात करते हैं कि अगर आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स किसकी नजर में कितने क्या है, आपकी नजर में कोई पर्टिकुलर चीज फर्क हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि हर एक का आउटलुक फर्क होता है, देखने का नजरिया फर्क होता है। तो हम किस तरह, supposing someone is getting 60% and the person might feel that the 60% is very good, the other person might be getting 90%, might be still feeling no, 90% is too bad, I must be getting 100%. तो ये क्राइटेरिया कौन बनाता है, ये क्राइटेरिया कौन सेट करता है, ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कौन सेट करता है? It varies and it differs. So we need to see how we can improve the professional standards of the people. So ये जो इसका जो पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट की बात करी गई है, ये विद्यालय, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्कूल कब बंद किया जा रहा है, कब खोल रहे हैं, क्या टाइमिंग्स हैं, क्या उनका करिकुलम है, इसके ऊपर भी पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है, पॉलिटिकल इफेक्ट करता है, एंड दैट इज नेचुरली लीडिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. So we were discussing the psychological aspects also, and we found that the psychological basis is very important, like I told you, and the behavior pattern changes. Now I come back and link the aspect of sociological, social cultural and political scenario with that of psychological basis of curriculum. तो ये जो है ये influence होता है between the conditions which take place under the learning conditions which are taking place, और इसमें एटीट्यूड में चेंज होता है। तो बहुत ही डिफाइंड या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पे डिपेंड करता है कि जो साइकोलॉजिकल बेसिस है वो हम कौन सा सिनेरियो लेके चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। और इसको अप्रूव करने के लिए जो इंटरनल जो इंस्ट्रक्शनल मैटर है, मटेरियल है, मीडिया है, दैट शुड आल्सो सूट द लर्नर्स एबिलिटीज। अगर वो सूटेबल नहीं है तो लर्नर्स एबिलिटी विल बी ऑफ नो यूज एंड ऑफ नो पर्पस। सो वी से
you can say relating to the cognitive theories. Cognitive theories view the learner a relationship with various aspects, such as leading to the aspects on knowledge, aspects on belief, थॉट ना नॉलेज हम सब जानते हैं कि ये शब्द जो है एजुकेशन का मेन पिवट या सेंट्रल माना गया है, कीवर्ड है, शिक्षा ज्ञान के लिए लेते हैं। हर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति ज्ञान के लिए ही शिक्षा केवल ले रहा है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस। तो अगर हम कहें कि केवल इसलिए है, इसका पर्पस ये है कि नॉलेज अगर आ गई, नॉलेज एक्यूमुलेट कर ली, तो दैट इज सफिशिएंट। नो, knowledge needs to be accumulated and it is a center to the education. So knowledge is habitually defined as a belief that is true and justified, and Plato has defined knowledge as justified true belief. तो ज्ञान केवल हम, आपने मूवी देखी थी थ्री इडियट्स, जिसमें जो मेन उसका हीरो है आमिर खान, he was accumulating knowledge for the sake of knowledge. लेकिन आज आप अगर आप देखिए तो आपको समाज में ऐसा शायद ही कोई शख्स दिखाई दे जो केवल ज्ञान के लिए स्कूल जाता हो, केवल ज्ञान के लिए शिक्षा ग्रहण करता हो और उसके लिए डिग्री कोई मायने न रखती। See, we have to have a balanced approach in life. We cannot say कि this is the only aspect. Now, ये हम जरूर कहेंगे कि ये जो नॉलेज है या ज्ञान है, इसको हम कैसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कैसे हम पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड वी कैन नॉट लेट गो ऑफ इट. So education is simply not a you can say process where we are accumulating knowledge for the purpose of accumulating knowledge, but it is for the purpose of educating oneself, for the purpose of literature, for the purpose of literacy, for the purpose of beliefs in, you can say, जो हम नैतिक अपने अंदर मूल्यों को लाते हैं, तो ये जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ कहा है, और हम इसको इससे रिलेट करके एजुकेशन के माध्यम से we will only be relating to different aspects. Now I would also like to tell you that ये जो हम psychological aspect की बात कर रहे हैं, ये different aspects of knowledge की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, ये ज्ञान हम करिकुलम को कैसे आधार बनाएं, ये आपने देखा, मैंने कुछ पॉइंट्स आपकी कवर करी हैं, लेकिन सारे पॉइंट्स अभी कवर नहीं हो पाए हैं, and I'll be continuing this class in the coming next class, where we'll be discussing about the philosophical, we have discussed the philosophical aspect, parts of psychological basis also, as well as the socio-cultural aspect. But what is this basis on the political scenario, the scientific basis? They are all interrelated and they all need to be linked together. अब हम शिक्षा को जब हम करिकुलम में कहते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा बच्चों को दी जाए, तो ये एक ऐसा पहलू है जिसमें शिक्षा दी जाए केवल हमारे देने से शिक्षा नहीं मिलती। कई चीजें बच्चे नेचुरल फॉर्म में लर्निंग करते हैं, लेकिन उसकी जो आधारशिला हो वो किस प्रकार का खाका खींच के बनाया जाए, उसको कैसे डेवलप किया जाए, विल बी लर्निंग इन द कमिंग नेक्स्ट क्लास. So let us hope that you have followed this class, student, and have followed and learned about it. I would just like to tell you a little about the fact regarding the social forces which I was telling you. This is linking the cultural aspect as well as the social aspects. This keeping in mind the psychology. See, socially अगर आपको बहुत ही mal functioning कहीं पे दिखाई देती है, समाज में बहुत सारे drawbacks दिखाई देते हैं, it is the social impact is due to the, not due to just a few you can say people. वो पूरा समाज में इफेक्ट या इम्पैक्ट क्यों पड़ा है, वो इम्पैक्ट करता है उनकी साइकोलॉजी पे भी. उनकी साइकोलॉजी के कारण हमें समाज में भिन्न अंतर दिखाई देते हैं, और ये हम वैल्यूज या मोरालिटी को चेंज करने में समर्थ तभी हो पाएंगे जब इनको लिंक करेंगे, और हमारा करिकुलम इस प्रकार का होगा जो मूल्यों को देगा, अच्छे मूल्य स्थापित करेगा, बच्चों में इनकलकेशन करेगा, एंड बच्चों में वो इम्बाइब करने के वो प्रयत्न करेंगे. So technology should be a revolution which should provide with the positivity in a society. It should not be providing with the just simply the fact on relating to different aspects of जैसे चले आ रहे लकीर के फकीर हम नहीं बन सकते. हमें करिकुलम में चेंजेस लाने होंगे, keeping in mind the individual needs in society, keeping in mind the sociological aspects, the psychological aspects,
the philosophical aspects as well. So with that, I would just like to end my class for today's class on this period, and hope that you have followed it. In case you have any queries, you are most welcome to post them, and I will also answer them for you. And till then, please be safe. Thank you so much for the class. Thank you for attending the class. See you in my next class. Thank you, students.